So friends, नमस्कार and good day to all viewers. Friends, मैं आपका दोस्त संदीप बांसल एज अ इंजीनियर, एज अ वैल्यूअर, एज अ लॉयर एंड एज अ टेक्नो जर्नलिस्ट आपके सामने आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय जो पटना हाईकोर्ट की तरफ से लिया गया है वैल्यूएशन प्रोफेशनल के लिए, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ये आज का प्रेजेंटेशन हमारा उसी के ऊपर है, स्पेशल प्रेजेंटेशन ऑन दिस मैटर। So, before we start, I would like to welcome all viewers on behalf of CV Group, Council of Engineers and Valuers for watching this video. Please do not forget to like, comment and subscribe to our official YouTube channel, CV Engineers and Valuers Club. For any suggestions, you are always welcome to call me on my personal number 9041263607 for any query or any inquiry or any difficulty in viewing any video on our official YouTube channel. फैन, जैसा मैंने देखा है आप सभी लोग इस चैनल को देखते हैं, बहुत प्यार से देखते हैं और आपका बहुत प्यार हमें मिलता है, लेकिन आपके कमेंट्स हमें नहीं मिलते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, बुरा लगा, आप इसमें कोई सजेशन देना चाहते हैं, आप आगे कोई किसी पर्टिकुलर विषय पर कोई वीडियो चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में जरूर लिखिए, सो दैट कि हमें पता चल सके और अगला वीडियो हम आपके डिमांड के ऊपर उस पर्टिकुलर मैटर, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बना सकें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, आई वुड लाइक टू स्टार्ट टुडेज रिमार्केबल एंड वेरी, जो हमारी हिस्टोरिकल विक्ट्री हुई है एक वैल्यूअर हमारे दोस्त की, उसके बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट स्ट्राइक्स डाउन indefinite retention of valuer's name in IBA caution list. बहुत बड़ा डिसीजन है, द लैंडमार्क जजमेंट reinforcing proportionality, natural justice and professional rights of valuers. So ladies and gentlemen, today it is indeed a matter of great pride and honor for all of us to welcome two highly respectable professionals of Patna, Engineer Upendra Kishore sir and Engineer Vijay Kumar Singh. Both are distinguished chartered engineers, prominent valuers and widely recognized professionals in the field of engineering, banking, valuation and financial consultancy. They have been serving as approved valuers for the Income Tax Department for capital gain purposes and have also rendered valuation services for various nationalized banks across India with great professional integrity and technical excellence throughout the years. Apart from their remarkable professional achievement, both of them are also founder members of Council of Engineers and Valuers, an organization dedicated to the upliftment, protection and professional development of engineers and valuers throughout the country. Today's interaction become even more significant in light of the historic judgment delivered by the Honorable Patna High Court concerning the rights, dignity and professional future of valuers in India. Their experience, struggles and insights will undoubtedly inspire thousands of professional valuers across the nation. आज का यह विशेष संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय, ऐतिहासिक फैसला देश भर के वैल्यूअर्स के अधिकारों, सम्मान एवं पेशेवर भविष्य से जुड़ा हुआ है। उनके अनुभव, संघर्ष और विचार निश्चित रूप से देश भर के हजारों वैल्यूअर्स को प्रेरित करेंगे। इस भावना के साथ हम उपेंद्र किशोर जी एवं इंजीनियर विजय कुमार सिंह जी का इस विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ entire team of Council of Engineers and Valuers, whole fraternity of engineers and valuers, we warmly welcome Engineer Upendra Kishore ji and Engineer Vijay Kumar Singh sir for this exclusive interview. Friends, before I start, I would like to draw your attention for the whole case of this. Patna High Court strikes down indefinite retention of valuers name in IBA TPE caution list. जैसा आपको पता है IBA एक थर्ड पार्टी एंटिटी एक कॉशन लिस्ट बनाता है जिसमें वैल्यूअर्स के
बैंकिंग एजेंट्स के, एडवोकेट्स के या थर्ड पार्टी कोई भी सर्विस उनको देता है, उसके कुछ कॉशन लिस्ट बनाता है, जिसमें एक बार अगर आपका नाम आ जाता है, वो सभी बैंक्स, वो कोई भी बैंक हो, किसी भी तरह का, और नेशनलाइज या प्राइवेट बैंक हो, उसमें वो सर्कुलेट हो जाती है। और जिसका नाम एक बार उसमें आ जाता है, उनके लिए काम करना बैंकिंग सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है एज अ प्रोफेशनल valuer or any if he is providing any services as a valuer or any other profession. A landmark judgment reinforcing proportionality, natural justice, and professional rights of valuers. In a significant and far-reaching judgment for the valuation fraternity across India, the Honorable Patna High Court has delivered a landmark ruling on Mr. Upendra Kishore versus Punjab National Bank and others, CWJC number 4131 of 2025, decisively holding that indefinite continuation of a valuer's name in the Indian Banks Association IBA TPA list beyond the prescribed maximum period amounts to unconstitutional administrative blacklisting and violate the fundamental rights guaranteed under Article 14, Article 19, 1G and 21 of the Constitution of India. The judgment delivered on 15th May by Honorable Mr. Justice A. Abhishek Reddy sir is expected to have a transformative impact on banking valuation ecosystem, empanelment practices of banks, and future interpretation of disciplinary measures against valuers. So background of the dispute. What was the actual case? What was the actual cause of dispute? The petitioner, Mr. Upendra Kishore, was a registered valuer under Section 34 AB of erstwhile Wealth Tax Act 1957 and had been empaneled with Punjab National Bank since 2005. He is also associated with and stated to be member of reputed professional body, the Council of Engineers and Valuers, and an organization known for promoting professional standards, technical excellence, and ethical practice among engineers and valuers across the country. The dispute originated from the loan transaction involving Messrs. Priyadarshi Commercial Private Limited, to whom the credit facility of 400 crores had been sanctioned by the bank in 2015. The amount subsequently turned into an NPA and CBI case was registered in 2017 concerning allegations of fraudulent mortgage transactions. Although the petitioner was not named in the FIR or the first charge sheet, his name subsequently appeared in the second charge sheet. Following this development, Punjab National Bank issued a show cause notice to the valuer in August 2019. Alleged valuation lapse. Despite submission of written explanation, the bank proceeded to depanel him on 18 September 2019, and shortly thereafter, his name was placed in the IBA TPE caution list on 4th October 2019. The petitioner argued before the court that the continued detention of his name in the caution list had effectively resulted in a complete denial of professional opportunities, as most nationalized banks refused to assign valuation report to professionals whose name appeared in the IBA caution list. The central legal question. The principal issue before the court was whether a valuer's name could remain indefinitely in the IBA TP caution list even after expiry of a minimum period of de-empanelment prescribed under the governing valuation guidelines. The petitioner strongly relied upon Clause 1.4 of the Handbook of Policy Standards extreme cases for a maximum period of 5 years, even in extreme cases. I repeat, Clause 1.4 of the Handbook on Policy Standards and Procedures for Real Estate Valuation by Banks and Housing Finance Institution of India, which prescribe removal from the panel for a maximum period of 5 years, even in extreme cases. Since the de-empanelment was
order was issued on 18 September 2019, the petitioner continued that the petitioner contended that the punitive period had legally expired in September 2024. Since the de-empanelment order was issued on 18 September 2019, the petitioner contended that the punitive period had legally expired in September 2024, and that continuation of his name in the caution list beyond this period amounted to perpetual blacklisting without authority of law. The court's observation on administrative blacklisting. The High Court made several profound observations that are likely to become guiding principle in future dispute involving valuers and professional blacklisting. The Honorable Court drew a clear distinction between legitimate disciplinary regulation and unconstitutional civil death. It categorically observed that administrative blacklisting cannot continue perpetually and must remain proportionate and time-bound. Relying upon important Supreme Court precedents including Kulja Industries Limited versus BSNL, Vitindra Pharmaceutical Limited versus State of UP, Daffodils Pharmaceuticals Limited versus State of UP, Raghunath Thakur versus State of Bihar, and State of Odisha versus Binapani Devi. State of Odisha versus Binapani Devi. The court retarded that blacklisting orders with severe civil consequences cannot be indefinite and must conform to the constitutional principles of fairness, proportionality, and natural justice. The court further held that indefinite continuation of a valuous name in a centralized caution list results in deprivation of livelihood and professional reputation, thereby directly affecting the constitutional freedom to practice a profession under the Article 19(1)(g). Fresh cause of action recognized. One of the noteworthy legal aspect of the judgment is the court's rejection of the bank's argument that the matter had already attained finality because earlier proceedings challenging the de-empanelment had been dismissed. The court clarified that the petitioner was not challenging the original de-empanelment order afresh. Instead, the new cause of action arose from the expiry of 5-year punitive ceiling prescribed under the governing handbook. This distinction is extremely important because it recognizes that administrative penalties cannot automatically continue forever merely because the original disciplinary action once survived judicial scrutiny. Significance of the court's view in criminal proceedings. Another crucial dimension of the judgment related to the court's treatment of pending criminal proceeding against the valuers. The High Court took judicial note of the fact that criminal proceedings against the petitioner in the CBI case had already been stayed by a coordinate bench of the same court. Importantly, the court observed that valuers cannot be routinely
prosecuted merely for rendering valuation opinions, and that when criminal liability itself is under judicial suspension. Continuous administrative punishment based on the same allegations become arbitrary and disproportionate. This observation may provide substantial persuasive value in future litigation involving professional liability of valuers in banking and insolvency matters. Final direction issued by the Honorable High Court. Allowing the writ petition, the Honorable High Court issued the following important directions. The Indian Banks Association was directed to immediately remove the petitioner's name from the TPE caution list. Punjab National Bank was directed to formally communicate the court's order to the IBA. The bank was directed to independently consider any fresh application for re-empanelment strictly on present eligibility criteria and without being influenced by the expired 2019 de-empanelment. देखिए कितने इंपॉर्टेंट डिसीजंस आए हैं, तीनों के तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज अ वैल्यूअर. However, the court clarified that its observations were confined to administrative blacklisting and would not affect the pending criminal trial, which would continue independently in accordance with the law. Wider implication for the valuation profession. This judgment carries enormous implication for registered valuers, bank empanelment system, and regulatory authorities throughout India, and of indefinite caution listing. The ruling strongly indicates that indefinite continuation in IBA caution list without a specified tenure may not withstand constitutional scrutiny. Reinforcement of proportionality doctrine. The judgment reinforces the principle that disciplinary action just remain proportionate to the alleged misconduct and cannot operate as lifelong professional exclusion. The importance of natural justice. The court emphasizes that inclusion in caution list affecting livelihood and professional reputation must comply with principles of natural justice, including notice and opportunity of hearing. Need for transparent banking policies. Banks and financial institutions may now be compelled to revisit their empanelment and de-empanelment frameworks to ensure clear timelines, review mechanism, and procedural safeguards. Relief for numerous affected valuers. That is a very, very important point. Many valuers whose name continue indefinitely in caution list or blacklisting databases despite expiry of punitive periods may now seek judicial remedies based on this precedent. Now, the final words related to this decision. The Honorable Patna High Court judgment represents a major constitutional and professional milestone of the valuation sector in India. By recognizing that indefinite professional exclusion amounts to civil death, the court has reaffirmed that even administrative decision exercised by bank and industry association must remain subject to fairness, proportionality, and constitutional discipline. The fact that petitioner is associated with the Council of Engineers and Valuers also highlights the broader concern with professional circles regarding their fair treatment, due process, and protection of the livelihood of the qualified valuers functioning within the banking and financial ecosystem. For the valuation profession, and decision sends a powerful message that disciplinary mechanism cannot become instrument of perpetual professional extinction. Regulatory action must be balanced, time-bound, transparent, and legally sustainable. At the time when valuers increasingly
face heightened scrutiny in banking, insolvency, and financial transactions. This ruling may emerge as one of the most important judicial pronouncements safeguarding professional rights and due process within the Indian valuation framework. Now, without wasting much time, I would like to request our guest of today's session, the main guest of today's session, Mr. Vijay Kumar Singh ji and Upendra Kishore ji, for their interview in this session. Welcome to Mr. Upendra Kishore ji and Vijay Kumar Singh ji for this important day of Aitihasik Vijay for valuers. So friends, as I have already discussed, today we are having the opportunity to be with us the great personality from Bihar, the eastern part of India, and I am very proud to be with them on this very, very valuable and celebrating moment. So ladies and gentlemen, today it is needed a matter of great pride and honor for all of us to welcome two highly respected professionals from Patna, Engineer Upendra Kishore ji and Engineer Vijay Kumar Singh. Both are distinguished chartered engineers, prominent valuers, and widely recognized professionals in the field of engineering, banking, valuation, and financial consultancy. They have been serving as approved valuers for the Income Tax Department for capital gain and other purposes, and have also rendered valuation services for various nationalized banks across India with great professional integrity and technical excellence. Apart from their remarkable professional achievement, both of them are also founder members of the Council of Engineers and Valuers, an organization dedicated to the upliftment, protection, and professional development of engineers and valuers throughout the country. Today's interaction becomes even more significant in light of the historic judgment delivered by Honorable Patna High Court concerning the rights, dignity, and professional future of valuers in India. Their experience, struggles, and insights will undoubtedly inspire thousands of professionals across the nation. आज का यह विषय संवाद और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि हाल ही में पटना हाईकोर्ट द्वारा दिए गए ऐतिहासिक निर्णय देश भर के वैल्यूअर्स के अधिकारों, सम्मान एवं पेशेवर भविष्य से जुड़ा हुआ है। इनके अनुभव, संघर्ष और विचार निश्चित रूप से देश भर के हजारों पेशेवर को प्रेरित करेंगे। इसी भावना के साथ हम उपेंद्र किशोर जी एवं विजय कुमार सिंह जी का इस विशेष साक्षात्कार कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर फ्रेटर्निटी ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स, वी होल हार्टेडली वेलकम इंजीनियर उपेंद्र किशोर जी एंड इंजीनियर विजय कुमार सिंह जी फॉर दिस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार एंड वेलकम टू द सेशन सर। नमस्कार। उपेंद्र जी आपका स्वागत है और विजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू इस सेशन में। जो रिमार्केबल आपने जीत हासिल की है उसके लिए सिर्फ आपके लिए तो खैर बहुत बड़ी अचीवमेंट है, लेकिन ये हमारे लिए एज अ वैल्यूअर, एज अ प्रोफेशनल फ्रेंड ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी वैल्यूअर्स हैं सबका सर फकर से ऊंचा हो गया है आपकी बात सुन के। और जो जीत आपने ली है इसमें जिसने जीत हासिल की है उसके लिए तो खुशी की बात है ही है, लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि जीतने वाला आज खुद हमारे सामने बैठा है और अपने मुंह से अपने बारे में, और सबसे बड़ी बात है इस डिसीजन के बारे में और इस सारी सिचुएशन के बारे में आप हमारे साथ हैं। इससे बड़ी खुशी की बात कोई नहीं हो सकती। अगर आप इजाजत दें तो सर मैं थोड़ा सा आपसे इसके बारे में जानना चाहता हूं। विशेष साक्षात्कार के अंदर जो ऐतिहासिक न्यायिक जो विजय आपने ली है, दे तो हमारे साथ कुछ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं जो आपकी एक झलक पाने के लिए आज के ऐतिहासिक दिन हमारे साथ जुड़े हैं, और अगर आप इजाजत दें तो कुछ उनके द्वारा भेजे गए कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जिसकी उनको भी हेल्प मिलेगी और बाकी के जो वैल्यूअर्स जो व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को या इस प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं उनका भी हौसला बढ़ेगा आपके साथ साथ।
उपेंद्र जी, सबसे पहले आपको इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, धन्यवाद आप सर। आप पटना हाईकोर्ट के इस निर्णय को व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस निर्णय को केवल अपनी व्यक्तिगत जीत नहीं मानता है, बल्कि पूरे देश के वैल्यूअर्स समुदाय की जीत मानता हूँ। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी पेशेवर व्यक्ति को बिना निश्चित समय सीमा के अनिश्चित काल तक दंडित नहीं किया जा सकता है। जी जी यह निर्णय संविधान द्वारा दिए गए पेशेवर सम्मानित आजीविका के अधिकार को मजबूत करता है। जी जी, बहुत सटीक आपने आंसर दिया है सर। एंड द सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द व्यूअर इज, व्हाट वाज द बिगेस्ट हार्डशिप यू फेस्ड आफ्टर योर नेम वाज इंडिकेटेड इन द आईबीए टीपीई लिस्ट? मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूंगा। अब मैं आपका समझ गया नाम, सर कुछ। आपका हाँ नाम आईबीए टीपी कौशल लिस्ट में आने के बाद आपको सबसे बड़ी कठिनाई क्या झेलनी पड़ी, उपेंद्र किशोर जी? सबसे बड़ी समस्या यह थी कि मेरे पेशेवर कार्ड लगभग बंद हो गए। ओके। अधिकांश राष्ट्रीयकृत बैंकों ने मुझे वैल्यूएशन कार्ड देना बंद कर दिया है। जी। किसी भी वैल्यूएशन के लिए बैंक पैनल पर बने रहना आजीविका का महत्वपूर्ण माध्यम होता है। हम्म। इस सूची के नाम पर बने रहने से मेरा पेशेवर प्रतिष्ठा और भविष्य दोनों प्रभावित हुए। जी जी। अ, उपेंद्र जी, हमारे एक व्यूअर का क्वेश्चन है, न्यायालय ने अपने निर्णय में सिविल डेथ एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड मेंशन किया है, इस शब्द जी, का उपयोग किया है। वैल्यूज के लिए यह टिप्पणी कितनी महत्वपूर्ण है? यह टिप्पणी अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने समझा कि यदि किसी पेशेवर को अनिश्चित काल तक ब्लैकलिस्ट रखा जाए तो उसका पूरा करियर समाप्त हो सकता है। हम्म। एक वैल्यूअर वर्षों की मेहनत से अपनी प्रतिष्ठा को और विश्वास बनाता है, प्रतिष्ठा और विश्वास बनाता है। ऐसे में अनिश्चितकालीन ब्लैक लिस्टिंग वास्तव में पेशेवर जीवन समाप्त करने जैसी स्थिति बन जाती है। जी जी जी। अ, जी उपेंद्र जी, एक क्वेश्चन मेरा और है। इस निर्णय में प्रोपोर्शनरी प्रोपोर्शनरी एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है और समयबद्ध दंड पर विशेष जोर दिया गया है। इससे बैंकों और नियामक संस्थाओं को क्या संदेश जाता है? जो प्रोपोर्शनैलिटी वर्ड एक हाँ मेंशन सर, किया गया है। सर यह निर्णय स्पष्ट संदेश देता है कि अनुशासनात्मक कार्रवाई निष्पक्ष पारदर्शी, कोई भी दंड अंतकाल तक नहीं चल सकता। आईबीए की अपनी गाइडलाइन में अधिकतम 5 वर्ष की अवधि निर्धारित थी। उसके बाद भी मेरा नाम सूची में बनाए रखना मनमाना और असंवैधानिक था। जी जी। अ, उपेंद्र किशोर जी, एज अ मेंबर एसोसिएटेड विद काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स, व्हाट योर रोल व्हाट रोल डू प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्ले इन प्रोटेक्टिंग वैल्यूअर्स? मैं इसको ट्रांसलेट करना चाहूंगा। द काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से जुड़ने के नाते आप पेशेवर संगठनों की भूमिका को कैसे देखते हैं आपकी पूरी जर्नी के दौरान? ऐसे संगठन पेशेवरों को तकनीकी, नैतिक और कानूनी मार्गदर्शन प्रदान करती है। यह काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स जैसे संगठन इंजीनियर्स और वैल्यूअर्स के हितों की रक्षा करने में, उन्हें जागरूक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कठिन समय में ऐसे संगठनों का नैतिक समर्थन बहुत महत्वपूर्ण होता है सर। जी, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि कभी भी कोई भी कठिन समय आता है जो वैल्यूअर्स के, जहां पर वैल्यूअर्स को कुछ फेस करना पड़ता है, कुछ ऐसी चीजें जो फेस करनी पड़ती हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर होती हैं, ऐसे टाइम में कुछ संगठनों को नैतिक समर्थन ही बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो कि आपको आगे बढ़ने में और संघर्ष करने के लिए प्रेरणा देता है। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया सर। एक क्वेश्चन एक व्यूअर ने हमें अभी भेजा है। न्यायालय ने यह भी कहा है कि केवल वैल्यूएशन रिपोर्ट देने के कारण वैल्यूअर्स पर सामान्य रूप से आपराधिक मुकदमे नहीं चलाए जा सकते। आप इस निर्णय को कैसे देखते हैं? सर यह निर्णय का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह निर्णय का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा है सर। जी। वैल्यूएशन एक विशेषज्ञ राय होती है। ओके। जी
जो उपलब्ध दस्तावेजों, बाजार परिस्थितियों और तकनीकी विश्लेषणों पर आधारित होती है। यह कोई पूर्ण गणितीय विज्ञान नहीं है। जी जब तक स्पष्ट रूप से धोखाधड़ी या गलत नियत साबित न हो, केवल वैल्यूएशन रिपोर्ट देने के आधार पर वैल्यूअर को अपराधी नहीं माना जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा, केवल वैल्यूएशन रिपोर्ट देने के आधार पर हम किसी भी वैल्यूअर को एक अपराधी घोषित नहीं कर सकते, जब तक कि प्रॉपर उसकी ड्यू डिलिजेंस आप साबित ना कर दें या उसकी कोई गलती साबित ना कर दें। सिर्फ एक लोन गलत हो गया उसके बेस पे आप वैल्यूअर का पूरा कैरियर तबाह कर देते हैं। ये बहुत बहुत सोचने वाली और निंदनीय कार्य है जो कुछ बैंकिंग सेक्टर में ये किया जाता है। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इस आपके इस पूरे संघर्ष में हम आपके हमेशा साथ ही रहने की कोशिश की है और आगे भी हम यही कोशिश करेंगे कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है। विजय सर हमेशा शुरू से ही इस संघर्ष में बहुत बड़ा योगदान उन्होंने डाला है। सो उपेंद्र जी, एक और हमारे जागरूक व्यूअर का क्वेश्चन आया है मेंबर का, इस पूरे संघर्ष में युवा वैल्यूअर्स और इंजीनियर्स को क्या सीख लेनी चाहिए? देश के सभी युवा वैल्यूअर्स और इंजीनियर को युवा पेशेवरों को हमेशा सही दस्तावेजीकरण, पारदर्शिता, तकनीकी गुणवत्ता और नैतिकता बनाए रखनी चाहिए। हर रिपोर्ट तथ्यों और उचित निरीक्षण पर आधारित होना चाहिए। साथ ही उन्हें अपने कानूनी और संवैधानिक अधिकारों की जानकारी भी होनी चाहिए। जी Upen ji, there is a question from our viewer, young viewer. Sir, the question is, do you believe this judgment may help other valuers facing similar cautionless blacklisting issue? मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूंगा अपने व्यूअर्स के लिए। क्या आपको लगता है यह निर्णय अन्य वैल्यूअर्स को भी राहत देगा, राहत प्रदान करेगा? हाँ सर, बिल्कुल। यह निर्णय एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्थापित करता है कि कोई भी प्रशासनिक दंड अनिश्चितकालीन तक जारी नहीं रह सकता। जी इससे उन अनेक वैल्यूअर्स को राहत मिल सकती है जो लंबे समय से समस्याओं का सामना कर रहे हैं। जी उपेंद्र जी, इस निर्णय के बाद आप भारत की बैंकिंग वैल्यूएशन प्रणाली में कौन कौन से सुधार देखना चाहते हैं? मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहूंगा क्योंकि हमारे व्यूअर ने इसको इंग्लिश में पूछा है। ही मे बी फ्रॉम द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। आफ्टर दिस जजमेंट, व्हाट रिफॉर्म्स वुड यू लाइक टू सी इन द बैंकिंग वैल्यूएशन सिस्टम इन इंडिया? इस निर्णय के बाद आप भारत की बैंकिंग वैल्यूएशन प्रणाली में कौन कौन से सुधार देखना चाहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं आपसे बिल्कुल सटीक आंसर की एक्सपेक्टेशन करता हूं। मैं चाहता हूं कि पूरे देश में वैल्यूअर्स के लिए एक पारदर्शी और सम्मान प्रणाली, जिसमें पैनल बनाने, हटाने, समीक्षा और अपील की स्पष्ट प्रक्रिया हो। किसी भी कार्रवाई से पहले उचित सुनवाई और स्पष्ट आदेश दिया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही आपने बताया। देयर शुड आल्सो बी अ पीरियोडिक रिव्यू और कॉशन लिस्टिंग सो दैट प्रोफेशनल्स आर नॉट सब्जेक्टेड टू एंडलेस पनिशमेंट। बैंक्स एंड वैल्यूअर्स शुड फंक्शन एज प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स रादर देन एडवाइजर्स एडवर्सरीज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। तो उपेंद्र जी, एज अ जर्नलिस्ट, नॉट एज अ इंजीनियर और एज अ lawyer, I want to ask, as a journalist on the transparent side, अंत में आप वैल्यूअर समुदाय और पाठकों को, हमारे पाठकों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस मैं सब बहुत मैं बहुत ही हिस्टोरिकल विक्ट्री के ऊपर? मैं सभी देश के वैल्यूअर को और इंजीनियर से कहना चाहता हूं कि हमेशा अपनी पेशेवर ईमानदारी और नैतिकता बनाए रखें। कठिन परिस्थितियां जीवन का हिस्सा है, लेकिन धैर्य और न्याय व्यवस्था पर विश्वास बनाए रखना बहुत जरूरी है। यह निर्णय साबित करता है कि कानून और संविधान आज भी पेशेवरों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। Very well said, sir. This judgment demonstrates that constitutional protection still remain available to professionals who seek justice lawfully. I hope this decision, as per your words, I hope this decision strengthens
confidence among valuers and contribute toward a more balanced and fair professional environment in India. सो उपेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमारा एक विशेष संवाद मैं हमारे बड़े भाई विजय कुमार सिंह जी, और जो कि सीईवी काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स के मार्गदर्शक और फाउंडर मेंबर भी रहे हैं, मार्गदर्शक एंड पेशेवर सहयोगी आपके भी रहे हैं इस पूरी की पूरी एक परेशान करने वाली जर्नी में जो आपने अनफॉर्चुनेटली फेस किया है। मार्गदर्शक एंड पेशेवर सहयोगी इंजीनियर विजय कुमार सिंह जी से विशेष बातचीत इस ऐतिहासिक कानूनी विजय पर की पूरी यात्रा पर मैं कुछ करना चाहूंगा। विजय जी, अगर आप परमिशन दें तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो हमारे व्यूअर्स बहुत बहुत इंतजार कर रहे हैं आपके 2 वर्ड सुनने के लिए, तो अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ क्वेश्चन उनकी तरफ से जो पूछना चाहते हैं मैं आपसे पूछ सकता हूं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जी, वेलकम टू द क्लास वंस अगेन सर। Sir, one viewer from a southern state is asking, sir, you closely supported Mr. Upendra Kishore, sir, throughout this difficult legal and professional journey. How challenging was how challenging was the entire phase? मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। अपने इस पूरे कठिन समय में श्री उपेंद्र किशोर जी का आपने इस पूरे कठिन समय में उपेंद्र किशोर जी का साथ दिया, यह यात्रा कितनी चुनौतीपूर्ण रही? सर, यह समय बहुत कठिन और भावनात्मक रूप से चुनौतीपूर्ण था। किसी वैल्यूअर का नाम कौशन लिस्ट में आने का प्रभाव केवल काम तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास और भविष्य पर भी पड़ता है। मैंने एक मित्र और पेशेवर सहयोगी के रूप में उनके संघर्ष को बहुत करीब से देखा है। वंस कौशन लिस्ट में जब नाम आ जाए किसी का, उसके बाद अब उसी को बाकी बैंकों में भी ये करते हैं, और एक तरह से वो वैल्यूअर अनटचेबल हो जाता है पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बड़ा एक मेंटल एक सेटबैक लगता है, और ना ही उस पर्टिकुलर वैल्यूअर को, उनके पूरे परिवार को एक बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। तो ये हम समझ सकते हैं, बीइंग प्रोफेशनल ऑफ द सेम द ऑफ द सेम जर्नी, द पार्ट ऑफ द सेम बोट। विजय जी, आपको इस लंबे कानूनी संघर्ष में उनके साथ खड़े रहने की प्रेरणा कहाँ से मिली? सर, पेशेवर एकता और मानवीय मूल्य सबसे बड़ी प्रेरणाएं थी। जी, हम जानते हैं कि वैल्यूएशन एक विशेषज्ञ राय होती है और हर रिपोर्ट परिस्थितियों और उपलब्ध तथ्यों पर आधारित होती है। मेरा विश्वास था कि किसी भी पेशेवर को अनिश्चित काल तक दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे पनिशमेंट हर एक लॉ में हर एक चीज के लिए निर्धारित है। अगर वो मर्डर भी किया है तो उसके लिए 16 ईयर्स, 20 ईयर्स। अगर कोई और काम किया है तो सबके लिए आईपीसी में एक नियम है, बट इसके लिए कोई नियम नहीं। अनिश्चित काल तक किसी को आप डिबार रखेंगे, कौशन लिस्ट में रखेंगे, यह सही नहीं है। इसीलिए इसको कोर्ट में चैलेंज किया गया। बिल्कुल बिल्कुल, इवन एक बड़ी से बड़ी गलती करने पर भी कोर्ट एक लिमिटेड टाइम की सजा देता है। जैसे अगर आप अगर कोई बड़ी से बड़ी गलती जो हम मानते हैं जो 302 में आती थी पुराने आईपीसी में, उसमें भी एक लिमिटेड टाइम की सजा होती है, 15 साल, या उसके बाद उसको बाइज्जत रिहा कर दिया जाता है। उसकी सजा हो गई, उसने गलती की, उसने अपनी गलती मान ली, उसके बाद सजा हो गई, उसके बाद क्यों उसको प्रताड़ित करना? वो तो खत्म होना चाहिए और ये आगे कंटिन्यू नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल इसकी भर्त्सना करते हैं। जैसा आपने बताया, बिल्कुल सही बताया, वैल्यूअर्स रिपोर्ट इज एन एक्सपर्ट असेसमेंट बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड्स एंड फैक्ट्स, market conditions and professional judgment. And you said that you strongly believe that no professional should suffer perpetual punishment without final adjudication and without proportionality. As colleagues, we must support each other during difficult times, especially when larger professional principles are involved. Very rightly said, sir. Thank you for this. आपके जो विचार हैं इसके लिए, आपके अनुसार इस निर्णय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या है? सबसे बड़ा संदेश यह है कि प्रशासनिक कार्रवाई निष्पक्ष, संतुलित और समयबद्ध होनी चाहिए। माननीय न्यायालय ने भी स्पष्ट कर दिया कि अनिश्चितकालीन ब्लैक लिस्टिंग किसी पेशेवर के पूरे कैरियर को समाप्त कर सकती है। जी, जैसा आपने बताया
This judgment sends a strong message that institution cannot impose endless professional exclusion beyond their own prescribed guidelines. जैसा मैं समझ पा रहा हूं, it is a जी major जी बिल्कुल। reaffirmation of constitutional fairness and professional dignity. विजय जी, एक और क्वेश्चन हमारे एक व्यूअर पूछना चाहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत टचिंग लगा। इस संघर्ष के दौरान श्री उपेंद्र किशोर जी की किन किन विशेषताओं ने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया? ऐसे तो किसी के ऊपर अगर आईबीए कौशल लिस्ट में नाम चला जाए तो उसकी नींद खराब हो जाती है, सारे काम धंधे बंद हो जाते हैं। फिर भी उपेंद्र किशोर जी का धैर्य, आत्मविश्वास और न्याय व्यवस्था पर भरोसा मुझे सबसे अधिक प्रभावित करता रहा। कठिन परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा कानूनी रास्ते से संघर्ष जारी रखा। जी बिल्कुल, as you said that many people lose confidence under such circumstances, but he consistently believed that justice would ultimately prevail. His determination became an inspiration for many professionals who silently face similar hardships. So, Vijay ji, finally, one of our member is asking this question. Finally, what message would you like to give to young valuers, engineers, and professional colleagues after this landmark victory? अंत में आप युवा वैल्यूअर्स और इंजीनियर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे इस रिमार्केबल विक्ट्री के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि हमेशा तकनीकी गुणवत्ता, सही दस्तावेजीकरण, नैतिकता और ईमानदारी बनाए रखें। साथ ही अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक रहें। कठिन समय आने पर घबराने की बजाय धैर्य और एकजुटता बनाए रखें। यही इस पूरे संघर्ष की सबसे बड़ी सीख है। Yes, thank you, Vijay ji. Your message is very clear and simple. Always maintain professional ethics, proper documentation, technical competence, and integrity in your work. जैसा आपने बताया. At the same time, professionals must remain aware of their legal and constitutional rights. One adverse situation should never break a professional's confidence. This case teaches us that perseverance, professional unity, and faith in justice are extremely important. As per Mr. Vijay Kumar Singh sir, the valuation profession plays a critical role in the financial system, and valuers deserve fairness, respect, and due process under the law. थैंक यू विजय जी और उपेंद्र किशोर जी, आपने इस कठिन परिस्थिति में एक दूसरे का साथ बनाए रखा और सबसे बड़ी बात है एक ऐसा जजमेंट आपने लाने की कोशिश की जो कि हमारे जैसे कितने ही हजारों और लाखों वैल्यूअर्स का एक रास्ता और पथ प्रदर्शक बनने वाला है। आखिरी वर्ड आप दोनों से एक एक मिनट के लिए, जो फाइनल आपकी तरफ से खुशी, आई कैन अंडरस्टैंड आपको आज इस निर्णय के बाद बहुत बहुत है और मैं आपको इस निर्णय के बीच में बाधक नहीं बनूंगा। मैं जल्दी से ये इंटरव्यू खत्म, आप तो देखिए जर्नलिस्ट की तो आदत होती है कुछ ना कुछ पूछते रहना और बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं कोशिश करूंगा आप जितनी टाइम मेरे साथ रहे उतना अच्छा, लेकिन क्योंकि आपको एक खुशी सेलिब्रेट भी करनी है और अपने सभी परिवार और मित्र संबंधियों की बधाइयां भी लेनी है, तो उसके लिए मैं सिर्फ लास्ट वर्ड आपसे दोनों से एक एक मिनट के लिए चाहूंगा, कुछ आप बोलिए सो दैट हमारे जो व्यूअर्स, इतने लाखों लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको इंस्पिरेशन मिले। मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपने अधिकारों को समझिए और कहीं पर भी उस अधिकार का उल्लंघन किया जाता है किसी भी बैंक के द्वारा या किसी और ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो न्यायालय का सहारा लीजिए। कानून स्पष्ट है, सबको अधिकार है और किसी को अपनी मनमानी करने का हक नहीं है। अगर कहीं अन्याय होता है उसके अगेंस्ट में आवाज उठाएं, एक दूसरे से सहयोग बनाए रखें। काउंसिल ऑफ इंजीनियर्स एंड वैल्यूअर्स आपके हर मदद के लिए हमेशा तैयार है। सारे डॉक्यूमेंटेशन, सारे जो सामग्री होती है केस के लिए, वो सारा का सारा हम लोग प्रोवाइड करेंगे सीईवी के तरफ से, और कभी जरूरत पड़े तो हम लोग हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। धन्यवाद। थैंक यू विजय जी। और जैसा विजय जी का स्पष्ट संदेश है, अगर कोई भी हमारा मित्र या कोई भी हमारा मेंबर या कोई भी हमारा वैल्यूअर दोस्त कहीं भी किसी को कोई भी तकलीफ आती है तो बिना हिचक, बिना घबराए और बिना छुपाए आप सीधा आप विजय जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, उपेंद्र जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, सीवी हेडक्वार्टर में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हर संभव मदद विजय जी की तरफ से प्रोवाइड की जाएगी। सबसे पहला जो लैंडमार्क जजमेंट है विजय जी के लिए ही आया था और काफी साल पुराना जजमेंट है। हम तो
उनको उनके उस जजमेंट को देख कर ही बहुत कुछ हिम्मत हम लोगों के अंदर काम करने की उत्पन्न हो जाती है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी कुछ हो, सबसे पहला काम है कि आपको घबराना नहीं है। दूसरा, आपने उसको छुपाना नहीं। अगर कोई भी आपके साथ एडवर्स करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले आप फ्रंट लाइन में आइए और कांटेक्ट करिए अपने सीनियर लोगों से, विजय कुमार जी के जैसे लोगों से, जो इसमें पूरे एज अ कार्यकर्ता, एज अ फाइटर, एज अ फ्रंट लाइन फाइटर ऑफ दिस, और हमारे हक के लिए जो लड़ते रहे हैं, उनको कांटेक्ट करिए। मैं उपेंद्र किशोर जी से चाहूंगा कि आप 2 वर्ड बोलिए सर, सो दैट कि हम आगे बढ़ सकें। जी हाँ सर, धन्यवाद सर। जी हमारे एडवोकेट सिद्धार्थ प्रसाद, जी जिसने बखूबी इस निर्णय को लाने में पूरा सहयोग किया, जी और विजय सिंह के बिना ये चीज पूरा हो नहीं सकता था। जी विजय सिंह का काफी सहयोग रहा और हमको टूटने नहीं दिए, जी मेरे हिम्मत को हर समय स्ट्रांग बना के रखे। जी मैं भी रहा कि हाँ ठीक है। जी जी, थैंक यू सर। हाँ जैसा आपने बताया, सिद्धार्थ जी का बहुत बहुत सहयोग रहा है। मैं उनसे एक बार मिला भी हुआ हूँ, पिछले इंटरेक्शन में हमने उनसे मुलाकात की थी। बहुत ही नाइस और बहुत ही कोऑपरेटिव और बहुत ही लर्नेड प्रोफेशनल हैं। बहुत उन्होंने हमें जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। जी उपेंद्र जी, मैं आपसे मैं, चाहता हूं कि आप कंक्लूजन रिमार्क हाँ दें। सर, मेरी पत्नी का विशेष सहयोग रहा मेरे ऊपर, जी, मुझे कभी निराश नहीं होने दी। बहुत बड़ी हर बात है समय, सर, बहुत। जी हाँ हर समय मेरे पीछे पीठ पर खड़ी रही कि नहीं, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा, भगवान है, सब देखेंगे। आप किसी को डैमेज नहीं किए हैं, ना करते हैं, जी, आपको भगवान से मदद मिलेगा। अभी मैं बहुत बहुत। महाकाल गया था, जी उज्जैन दर्शन करने। जी, वहां के बाद आया हूँ, लौट करके 1 महीना हुआ, उसके बाद ये सब निर्णय आना शुरू हो गया। देखिए, बाबा जी की कृपा आपके ऊपर बरसी है और भरपूर बरसी है। और सबसे बड़ी बात है, जो हमारे अपने परिवार के लोग होते हैं, जैसे पत्नी है, बच्चे हैं, जैसा आपने बताया, आपके वाइफ का बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जब ऐसा भावनात्मक सहयोग मिलता है और उनको, अब सबसे पहले एक, जब ऐसा आदमी के साथ कोई ऐसा अनफॉर्चुनेट हो जाता है, तो सबसे पहले आदमी अपने लोगों से ही नजरें चुरानी शुरू कर देता है कि यार वो क्या सोचेंगे। और जब वो लोग भावनात्मक सपोर्ट के साथ आपके साथ पत्थर की तरह खड़े रहते हैं, पीछे चट्टान की तरह खड़े रहते हैं, तो आपकी हिम्मत दुगनी हो जाती है। और उसके बाद जब विजय कुमार सिंह सर जैसे एक बिल्कुल निष्पक्ष और मजबूत दोस्त आपके साथ खड़े हैं, और सिद्धार्थ जी जैसे एडवोकेट आपके साथ खड़े हैं, तो जीत आपकी पक्की ही होनी चाहिए, क्योंकि आपने कोई गलती नहीं की। और आप किसी की दूसरे की गलती का क्यों खमियाजा भुगतें? ये बहुत बड़ा डिसीजन है। और किसी की गलती का खामियाजा एक वैल्यूअर जो सबसे लोअर लेवल पे काम करता है, बैंकिंग सेक्टर की आईज और ईयर्स होता है, वो क्यों उनकी दूसरे किसी की भी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, किसी को हम बुराई भी नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, हमारा मकसद किसी को कुछ कहना नहीं, लेकिन गलती हुई है तो किसी ना किसी से तो हुई होगी। तो किसी दूसरे की गलती का खामियाजा एक हमारे एक, जो बिना, जिसकी कोई गलती नहीं है, ईमानदार आदमी है, वो क्यों भुगते? ये बहुत बड़ा डिसीजन है। विद दिस मैं इस मीटिंग को या इस डिस्कशन को खत्म करता हूं, क्योंकि आपको भी सेलिब्रेट भी करना है। बहुत खुशी है, आपको भी है, हमें भी है, विजय जी को भी है, सबके लिए आज उत्सव का दिन है। तो हम चाहते हैं ये उत्सव प्रॉपर मनाया जाए और हम आपको इसके लिए ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करें। और विद दिस we conclude this meeting. Thank you very much for joining us, for थैंक यू थैंक यू सर, सर। थैंक यू, sharing your थैंक यू valuable वेरी मच, time with थैंक us. यू। Thank you very much.